If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थिन लेंस इक्वेशन, बोथ साइड डिफरेंट मीडिया, बोथ साइड सेम मीडिया और डिफरेंट केसेस में ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए कैसे इमेज बनेगी, रे डायग्राम, और उसका इंटरप्रिटेशन यूवी ग्राफ से डिस्कस किया था। इतना मेंटल इमेजिनेशन क्रिएट करने के बाद now we are prepared to go and practice some problems, because as I have seen here, if I can't picture it, I can't understand it. That is quote by Einstein. आप कोई भी प्रॉब्लम एनालाइज करने जा रहे हैं, अगर आप उसकी एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं या बना चुके हैं तो आप समझ लीजिए उस प्रॉब्लम को आप बहुत एग्जैक्टली एनालाइज कर चुके हैं एंड आपका सॉल्यूशन बहुत इंटरेक्टिव होगा। सॉल्यूशन में आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और जो आंसर फाइंड करेंगे उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जनरली जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे बुक्स में या जहां भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं वहां पे हर क्वेश्चंस के आंसर दिए होते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर मैच करते हैं। कई बार आंसर मैच नहीं करता और हम वापस अपने सॉल्यूशन को री एग्जामिन करते हैं और अपनी गलतियां फाइंड करके और बहुत खुश होते हैं कि हमने अपनी गलतियां फाइंड कर ली, अब हमें सॉल्यूशन आ गया। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें आपको आंसर मैच करके अपनी गलतियां रेक्टिफाई करने का मौका मिले। इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। किसी भी एग्जाम में आपको अपनी गलतियां रेक्टिफाई करके उनको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह हुआ आपका जो पहला सॉल्यूशन है बड़ा कॉन्फिडेंटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉब्लम को दो स्टेप में एनालाइज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिवली उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाएं, उसमें देखें कौन सा रे डायग्राम में कैसे रे कहाँ जा रही है, कैसे इमेज बन रही है। ये प्रेडिक्ट करने के बाद आप इक्वेशन से कैलकुलेट करें एंड अपने आंसर्स को अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस से मैच करें। इफ इट इज मैचिंग, इट मीन्स इट इज ए चेक योर आंसर इज करेक्ट। लेट अस डिस्कस द डायग्राम गिवन हियर ऑन द स्क्रीन. You can see a convex lens here. The rays are coming on the convex lens at some angle with the principal axis. Now these rays will not focus at the focus. They will focus at somewhere downward here. And here we can assume a plane perpendicular to the principal axis and passing through the focus. That plane is called focal plane. So when parallel rays are incident on a lens at some small angle to the principal axis, they will converge at a point in the focal plane. Similar phenomena is true for concave mirror also. So here all the rays which are coming parallel and incident on the concave mirror, and they are making some angle with the principal axis. They will converge at here, a point here on the screen, and this point is in the focal plane. Means if you extend the screen, where the screen will cut the principal axis, where the focus point. And similarly, we can predict for a diverging lens and a diverging mirror also. So when parallel rays are incident at some angle to the principal axis, they converge not at the focus, they converge at a point in the focal plane, and focal plane is a mathematical plane perpendicular to the principal axis passing through the focus. So before we start with the first problem, let us revise few important ideas what we had discussed in the last class. First we discuss the important results formulas. Say consider here is a thin lens. First radius of curvature surface is R1 and radius of curvature of the second surface is R2, and thickness shown here is T, but T is much smaller than R1 as well as much smaller than R2. तो ये जो लेंस की थिकनेस है दोनों रेडाई ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होनी चाहिए। एंड बिफोर द लेंस हियर द फर्स्ट आउटर मीडियम μ01 refractive index of the material of the lens is μl, and outside the lens on second side the medium has refractive index μ02. Of course, in usual situations, in almost all of situations, you will given a case where this medium is air, this medium is air. So these two lenses μ01 and μ02 will be 1 and μl will be μ. And but
we must be aware of this general case also. So let us compare the results. Lens equation, transverse magnification, and axial magnification. Now first case discuss different media on both the sides, and second, same media on both the sides of the lens, means mu naught 1 is equal to mu naught 2 is equal to mu naught. So in this case, you can recall the equation mu naught 2 upon V minus mu naught 1 upon U is equal to mu L minus mu naught 1 upon R1 plus mu naught 2 minus mu L upon R2. Now you can see the symmetry. Here above the V, the second medium, outer, and above the U is the first outer medium. And here mu L minus mu naught 1 upon R1 means first surface का जो refraction होगा उसमें, second refractive media minus incident media upon R1 plus again second surface के refraction के लिए आप याद कर सकते हैं क्या, ये जब second surface पे refraction होगा तो mu naught 2 refractive media होगा, मतलब इसमें refracted ray exist करेंगी, and mu L क्या होगा, incident media में जिसमें incident rays हैं. So mu R minus mu I जो हमारा पहला convention था means mu naught 2 minus mu L upon R2. So this equation is not difficult to remember. Now in case here it will be very easy to reduce what 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F is equal to mu L oblique minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2. So if you see the second part here, the last two terms, that is called Lensmaker's formula, and here this is called, the first two terms are called lens equation. Now what is transverse magnification? M is defined as height of image upon height of object. Actually say it is height of image upon height of object, but actually what it is? Extension of the object point under consideration perpendicular to the principal axis. And similarly here, what is HI? Extension of the image point under consideration perpendicular to the principal axis. So M is equal to HI upon HO is equal to mu naught 1 into V upon mu naught 2 into U. And here for this, these two will be equal, so it will be simply V by U. So M is equal to H by H naught is equal to V by U. What is the axial magnification? For any size of object, that is V of A minus V of B upon U of A minus U of B. We assume an object AB, जिसके extreme points AB हैं, and that object is lying along the principal axis. And this relation will be same here also, because there is no involvement of refractive media in this equation. Now, for infinitely small size object, we have to differentiate this equation and find the result, and the result will be what? M axial is equal to dV upon du, that is mu naught 1 V upon mu naught 1 U V square by U square, that is here square. And if you incorporate this result here, what it will be? Mu naught 2 upon mu naught 1 into M square. Now that result for this case will become simple because there is no involvement of refractive indexes. So M axial will be what? dV by du is equal to, that is V square upon U square, or is equal to M square. M is what? Transverse magnification. So these are the formulas what we have seen earlier. Now we concentrate somewhat on the lens equation graphs. Because why I am stressing much on the graph? Because a single graph contains all the ray diagrams, all the possibilities. Because you have to think about some possibility. So to think corresponding ray diagram will be somewhat difficult in some cases. And आपको हो सकता है कई सारे रे डायग्राम सोचने पड़े और फिर कोई एक रे डायग्राम मैच करे. लेकिन अगर आप सामने ग्राफ है तो उस ग्राफ में सारी पॉसिबिलिटीज है, यू कैन एक्सप्लोर. सो जस्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशंस will be simpler with the help of graph. And now we consider the graph. Converging lens, this was the graph, and diverging lens, this is the graph. Now converging lens, basically we are say converging. Usually convex lens is converging in the condition that refractive index of the media of the lens should be more than the refractive index of the outer media. But in the reverse case, if refractive index of the lens is lesser than the refractive index of the outer media, the convex lens may become diverging lens. So here I'm not writing here convex lens and concave lens, I'm writing converging lens and diverging lens.
So real object for this, real object, that will be sign convention. Rays are coming from the left. So for this, u will be negative. And for virtual object, u will be positive. Similarly, for real image, v will be positive, and for virtual image, v will be negative. Very easy to remember. And we can predict magnification also from the graph. For magnification, what? Say m is equal to v by u, and that is tan theta. What? v by u का मतलब ये हुआ, ग्राफ के किसी पॉइंट को आप ज्वाइन करें, कंसिडर करें, उस पॉइंट को इस ऑरिजिन से ज्वाइन करें, तो जो लाइन मिलेगी, सपोज वी टेक ए पॉइंट पी एन, ओपी लाइन ये ओ हुआ, ओपी लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा, एंड दिस वे हियर. यहां हमने एक पॉइंट लिया, ऑब्जेक्ट पॉइंट, और यहां हमने ये कंसिडर किया. तो ये जो लाइन था, पॉइंट जो ग्राफ है, उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया. उस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी मैग्निफिकेशन. So here tan theta is magnification, and here this tan of this theta is magnification. Now you can see very easily when tan theta will be greater than 1 and when theta will be smaller than 1, when tan theta is negative and when theta is positive. For a circular trigonometry, in first and third quadrant tan theta is only positive. So if the object point lies on this quadrant or this quadrant, only when magnification will be positive, means erect image will be obtained. If you find the object point in the second quadrant and fourth quadrant, tan theta is negative, so magnification will be negative, and you will find an inverted image. So for we can say for inverted image, m is negative. For erect image, m is positive. So that we can just by observing this line, you can say when the image will be erect and when the image will be inverted. Now, enlarged image, modulus of m should be greater than 1. And for just you can say reduced image, modulus of m should be smaller than 1. Now you can remember, if you draw a tangent here at the origin of the graph, that tangent has slope unity, and that tangent will decide a benchmark when m will be smaller than 1 and m will be greater than 1. That we have seen in several situations in the last lecture. Now I'm not going to revise the ray diagram because it will be very cumbersome, very detailed task. Now we are well equipped to analyze problems. So what are the idea will be, when we study the problem, we make a mental picture and try to analyze the solution qualitatively, and then we write the equations and find answers. Example 1. Find the location, orientation and magnification of the image of a real object at each of the following positions in front of a convex lens of focal length 10 centimeter, first 50 centimeter, 5 centimeter and 20 centimeter. So whenever it is said the image of a real object, it means in all the cases this u will be negative, because you can think, imagination, real object means actual object. It is placed on any side of the lens, it can be placed, but rays are actually emanating from the lens. सो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है वो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी. अगर ये रियल ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो राइट साइड जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड नेगेटिव होगी. अगर ये ऑब्जेक्ट लेंस के राइट साइड में रखा है तो इससे रेज निकल के टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगी, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगी और राइट साइड नेगेटिव होगी. इन चीजों का ध्यान रखना होगा. बट यूजुअली व्हाट वी टेक, वी ऑलवेज कंसीडर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेंस, जब तक हमें ऐसा जरूरी ना हो जाए कि ऑब्जेक्ट को हमें राइट साइड कंसीडर करना पड़े, क्योंकि कन्वेंशनली जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं उसमें राइट साइड पॉजिटिव होता है. सो व्हाट वी कैन डू, से क्वेश्चन नंबर 1, फॉर कॉन्वेक्स लेंस f इज इक्वल टू +50. कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, एंड 1/v minus 1/u is equal to 1/f is the length equation. In all the cases, we have to find v and then magnification. So here ये calculations repeat करनी होंगी, तो हम यहीं से v का expression find कर लें. So what will be equal to uf upon u plus f. That you can easily verify. That is 1/u will be here with plus sign, 1/f plus 1/u. So this you will get this one. Now what will be magnification? V by u. So it is very simple, f upon u plus f. Now for case A, u is equal to -50. Just we have to substitute the values. So what will be v? uf upon u plus f.
That implies V is equal to minus 50 into 10 upon minus 50 plus 10, and this will be 12.5 centimeter positive because numerator is also negative, denominator is also negative, so it is positive. So V positive means we get a real image. So from here we can say only real image, but at present we cannot say whether the image will be inverted or erect or enlarged or reduced. For that we have to calculate transverse magnification or simply magnification. So what is magnification? M is equal to F upon U plus F. Let us substitute the values. So 10 upon minus 50 plus 10. So what you get here? Minus 0.25. So minus sign denotes that the image will be inverted. And modulus of M is smaller than 1. It shows the image is reduced in size. It is smaller than the object in size. So inverted and smaller image. Similarly, we can say for B, U is equal to minus 5 centimeter. So what you get? V is equal to UF upon U plus F. That implies minus 5 into 10 upon minus 5 plus 10. So we get here minus 10 centimeter. V minus 10 means image will be on the same side of the object. इसका मतलब ये हुआ जो रेज रिफ्लेक्ट होकर लेंस को पार कर जाएंगे, इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इमेज लोकेशन मिलेगी. सो क्लियरली इट इज अ वर्चुअल इमेज. सो यहां से हम इतना कह सकते हैं कि लेंस से 10 सेंटीमीटर अवे वर्चुअल इमेज होगा. But without calculating magnification, we cannot say whether the image is inverted, erect, enlarged, or smaller. Let us calculate the magnification. So M is equal to F1 U plus F. So that is 10 upon minus 5 plus 10. So it is 2. It means in plus sign image is erect. And when modulus of M is greater than 1, so it is enlarged. Magnification आप यहाँ पे V find करने के बाद V by U भी सीधे find कर सकते हैं. But here I am using independence relation. Suppose आपको V कैलकुलेट करने को ना कहा गया होता, केवल मैग्निफिकेशन फाइंड करने को कहा गया होता, so that way will be better. So in case C, let us see U is equal to minus 20. So again we repeat the calculation. V is equal to UF upon U plus F. That implies minus 20 into 10 upon minus 20 plus 10. So you get here 10 centimeter. Again positive means real image. Still we cannot say image is erect or enlarged or inverted or smaller, whatever it is, that we can predict only by calculation of magnification. So M will be again say that is the F1 U plus F. By substituting values, M is equal to 10 upon minus 20 plus 10, you get negative, so it is minus 1. So image will be of the same size but inverted, and here this plus sign shows real image. So we have done this thing. So that was a simply formula practice this question I selected just to make you familiar with putting the values in the formula. Now we are coming on some other questions. Example 2. Say here this diagram is given and what the question is: to project an image of a point source of light on a screen as shown in the figure, which type of lens, converging or diverging, you need to choose, and what is the focal length? Now I am using here the term converging or diverging instead of concave and convex. Basically, keeping in mind the fact that a convex lens may behave as a diverging lens depending on refractive index of the media outside the lens. तो but general terms क्या होंगी? Converging and diverging. But usually sense में क्या होता है, हम लेंस को as air में यूज करते हैं. उस केस में convex लेंस ही converging लेंस होगा एंड कॉन्केव लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस होगा. अगर मीडिया के बारे में ना कहा गया हो और कॉन्वेक्स लेंस कहा गया हो तो हम उसको कन्वर्जिंग लेंस लेंगे. एंड जनरली ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको बुक्स वगैरह में प्रॉब्लम्स में फाइंड मतलब यही मिलेगी. जनरली कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टर्मिनोलॉजी ना यूज करके कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव यूज करते हैं. अब देखिए हमें क्या यूज करना है कि ये पॉइंट सोर्स है, लाइट का मतलब रियल सोर्स है, और स्क्रीन पे इमेज ऑपरेट करनी मतलब स्क्रीन तक रे एक्चुअली पहुंचनी चाहिए तभी तो वहां इमेज बनेगी. इट मीन्स रियल इमेज. तो रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज हमें लेंस कौन सा यूज करेंगे ये प्रिंट करना है. नाउ व्हाट वी कैन टेक, हम रे डायग्राम और ग्राफ दोनों का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ लेंस आइदर रे डायग्राम और यूवी ग्राफ मे बी यूज्ड. सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर द रे डायग्राम. So I have redrawn the situation. रे डायग्राम में पहली रे वो यूज कर लें जो पोल से पास होती है बिकॉज दैट इज सिंपलेस्ट. A ray passing through the pole of the lens will go undeviated from the lens.
So a ray from this will go straight this way. Now we take another ray, a ray coming from the object parallel to the principal axis which pass through the second focus point of the lens. So this ray, you can see, ये इमेज यहाँ बननी चाहिए इस रे के हिसाब से, तो ये रे आई, अब ये यहाँ से ऐसे पास और टर्न होके इस पॉइंट पर आके इस रे को मीट करे दिस वे. सो दैट विल बी व्हाट, सेकंड फोकल पॉइंट. एंड इस हिसाब से आप कह सकते हैं दैट लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज दैट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती रेस को जो लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस टर्न करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग. एंड अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अवे टर्न करता तो हम बोलते हैं डाइवर्जिंग. So here in this case we can easily predict the type of lens by ray diagram. तो अगर स्ट्रेटेजी है कि अगर रे डायग्राम आप इजिली सोच सकते हो तो आप रे डायग्राम यूज करें, बिकॉज रे डायग्राम विल एक्चुअली टेल यू व्हाट इज हैपनिंग विद द रेस. ग्राफ इज अगेन a mathematical process. I will give second preference to the graph, but again graph is very important because in some situation to think the ray diagram will be very difficult. Now how will you use the ray diagram? That is a graph, but you can see from here prediction. A converging, that is a convex lens must be used. Use of UV graph. So I'll say this is a graph of converging lens and this is graph of diverging lens. From here you can see that is U is negative. U negative means either the image object point will be in the second quadrant or third quadrant. So फॉर दिस ये आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं बट थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट हो सकता है. बट V इज पॉजिटिव. V पॉजिटिव मीन्स ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट इज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द कन्वर्जिंग लेंस. सो U is equal to -75, V is equal to +150. दैट पॉइंट कैन एग्जिस्ट इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट से हियर. सो ये पॉसिबिलिटीज आप देखिए डाइवर्जिंग लेंस में नहीं हो सकती. तो आप यूवी ग्राफ से बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा लेंस यूज करेंगे. सो अगेन दिस पॉइंट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ए कन्वर्जिंग लेंस कैन ओनली बी यूज्ड. अब देखिए ग्राफ से हमें एकदम से एक साथ मिल जाएगा कैन ओनली बी यूज्ड, यही केवल पॉसिबिलिटी होगी. बट रे डायग्राम से हमारे पास एक डाउट रहेगा, कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है. चलो हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए ट्राई करें, डाइवर्जिंग लेंस का रे डायग्राम ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है इनमें दोनों ही लेंस यूज कर सकते हो, बिकॉज द क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. तो हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे डाइवर्जिंग लेंस भी यूज हो सकता हो, कन्वर्जिंग लेंस भी यूज हो सकता हो. तो उस केस में आपको दोनों रे डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट उससे बेटर अप्रोच होगा ग्राफ का. नाउ दैट वाज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी कम ऑन next question. Example 3. A magnifying lens has focal length 10 centimeter. Find the location of the object of its image is 30 centimeter away from the lens. What is the magnification? Means what did you find? Find the location of the object if its image is 30 centimeter away from the lens. So clearly modulus of V is given 30 centimeter, but modulus of U is not given. And focal length is 10 centimeter. What is magnification? So what we can think about the problem, say here, a magnifying glass is a converging lens. Please, again, बात ये हुई कि जब तक ये मेंशन न किया गया हो कि लेंस के आउटसाइड जो मीडिया है अदर देन एयर मींस इट इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन द मटेरियल ऑफ द लेंस, उन सारे केस में कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस एक ही बात करेंगे. एंड कन्वर्जिंग लेंस हमें मालूम है कि एक को ही मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है. तो मैग्नीफाइंग लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस, ये टर्मिनोलॉजीज हमको मालूम होनी चाहिए. देन वी थिंक अबाउट द ग्राफ. ये ग्राफ है कन्वर्जिंग लेंस का. एंड व्हाट इज दैट? अब इस ग्राफ को मैंने क्यों यूज किया? बिकॉज जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज V is 30. It is not said that V is image is virtual or real. ये नहीं कहा गया है. तो V +30 भी हो सकता है, V -30 भी हो सकता है. एंड 30 इज व्हाट? मोर देन द फोकल लेंथ, अबाउट 3 times. सो दिस इज फोकल लेंथ. तो इसके 3 times आप देखिए यहां एक पॉइंट हो सकता है और यहां एक पॉइंट हो सकता है. सो दिस वे एंड दैट वे. सो द ग्राफ विल क्लियरली शो दैट देयर आर 2 possibilities. Now with the help of ray diagram it will be very difficult to go on here. There will be 2 possibilities.
अदरवाइज यू कैन प्रोसीड स्ट्रेट फॉरवर्डली मैथमेटिकली। आप v को प्लस और -30 दोनों मान के चलें और उससे आप u और की दो वैल्यूज आएंगी, फिर मैग्निफिकेशन निकालें। एक वो तरीका है, इक्वली गुड। बट अगर आप पहले से क्वालिटेटिव विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन प्रेडिक्ट योर सोल्यूशन, बिकॉज यहां से हमें क्लियर हो गया कि u की दो वैल्यूज मिलेंगी और दोनों ही नेगेटिव मींस दोनों ही ऑब्जेक्ट रियल होंगे। एक फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट फोकस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा होगा एंड सेकंड केस में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। यहाँ वर्चुअल इमेज मिलेगी और यहाँ रियल इमेज मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड होगी और यहाँ पे इमेज इरेक्ट होगी और दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और इतना प्रेडिक्ट कर लिया तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन चूज करने में केवल एक ही ऑप्शन इन क्वालिटीज को क्वालिफाई करता हो तो आप उसको टिक कर दें। व्हाई यू आर गोइंग टू मेक कैलकुलेशंस? सो दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इतना करने के बाद हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा आंसर कैसा आएगा, वैल्यूज पे नहीं। तो एक आंसर कैसा आएगा, आंसर का नेचर कैसा है, ये प्रेडिक्ट होने के बाद हमारा अगर आंसर उस नेचर को मैच कर गया तो वी विल बी कॉन्फिडेंट इन प्रेडिक्टिंग द आंसर। लेट अस कम ऑन द फर्दर सॉल्यूशन। रे डायग्राम, अगर हम इसको रे डायग्राम से प्रेडिक्ट करना चाहें तो व्हाट वी कैन से हियर, ये कन्वर्जिंग लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास ये ऑब्जेक्ट है। So a ray going parallel to the principal axis will pass to the second focus and a ray passing through the pole will go undeviated and here you will get what? An enlarged and inverted real image. अब हमें क्या होगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएं तो आप देखें कि ये इमेज क्या होगी, पास आती जाएगी और छोटी होती जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को पास लाएं तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब ये रे यहाँ डाइवर्जिंग हो जाए और पीछे ले जाके मिले, वो सेकंड पॉसिबिलिटी हो। अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी को रे डायग्राम से सोचना थोड़ा सा मुश्किल था बट ग्राफ से वो अपरेंटली विजिबल है। नाउ लेट्स कम द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो ये तो u1 यहाँ पे हमने अगर इस पॉसिबिलिटी से देखें तो ये u1 हो गया एंड ये v1 हो गया, यहाँ से u1 एंड v1। व्हाट अबाउट सेकंड पॉसिबिलिटी, हमने ऑब्जेक्ट को काफी पास ले लिया। सो रे विल coming parallel to the principal axis will pass to the second focus and ray from the pole will go undeviated. You can see here the rays are slightly diverging, so they will never meet here, but if we extend them back they will meet here. So here we will get what? An virtual image, enlarge and erect. So for the second case you can see that is what is u2 and v2. So that is u2 negative and that is this is u2 and this is v2 and this is what? v2. So we have shown that is qualitatively what kind of answer we'll find, nature of answer we have predicted. Now only thing is what? वैल्यू प्रेडिक्ट करना है अपने को, वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, हमें मैग्निफिकेशन क्या क्या मिल सकते हैं। एक तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, दोनों केस में मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा लेकिन एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। So let us calculate the values. Case first, real image. It means v is plus 30. अब देखिए क्या, अगर हमने वो क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं किया होता, ग्राफ और रे डायग्राम नहीं देखा होता तो हम सीधे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर सकते थे। हमने v की दो पॉसिबिलिटी ले ली, v is plus 30 एंड सेकंड केस ले लेंगे v is minus 30. सो इस केस में 1 upon v is equal to 1 upon u is 1 upon f. We have to calculate u. So पहले आप ये फॉर्मूला निकाल लें and now substitute the values. So what is 30 into 10 upon 10 minus 30? So what you get here? Minus 15 centimeter. So what is u? Minus 15. And u निकलने के बाद आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं what? v by u. So m is equal to v by u. v is given plus 30, u is minus 15. So we get here 30 upon minus 15, that is minus 2. So image is enlarged and what? Inverted, and here minus sign, real. So inverted and double in size and real image what you got, because real image already कहा हुआ था तो हमने प्लस assume किया था। Now let's come on the second case, virtual image means v will be negative. तो virtual image के लिए क्या होगा, v will be minus 30 and we repeat the same formula. So 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. So u is equal to vf upon f minus v. Substitute the values. v minus 30 into 10 upon 10 minus minus 30. So you'll get what? Minus 7.5 centimeter. So u is minus 7.5 centimeter. V is again minus. Now let us calculate what? Magnification. V by u. So v is minus 7.5
sorry, u is minus 7.5, b is minus 30. So minus 30 upon minus 7.5. So what you get here? 4. So in case you get 4 times enlarged image, and plus means erect. So what? Erect and 4 times of the object. So that was again simple calculation. So till such kind of situation, there is not आप रे डायग्राम ग्राफ से पहले प्रेडिक्शन चाहे तो एग्जाम में बच सकते हैं, सीधे कैलकुलेट कर लें. लेकिन व्हेन यू आर लर्निंग द सब्जेक्ट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्राफ और रे डायग्राम जो भी पॉसिबल हो, उससे नेचर ऑफ आंसर पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें. उसमें भी आपको रे डायग्राम को पहली प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि रे डायग्राम आपको एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग विद रे, जो ऑप्टिकल प्रोसेस है रे ऑप्टिक्स का, उससे आपको ज्यादा फेमिलियर कराएगा. आपको सॉल्यूशन ज्यादा इंटरेक्टिव महसूस होगा. अगर आप केवल ग्राफ और इक्वेशन का यूज करते हैं, इट मीन्स हमारे माइंड में कोई मेंटल इमेज नहीं बन रही, कोई पिक्चर नहीं बन रही है, तो आपको सब्जेक्ट की वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी. आप आंसर सब सही कैलकुलेट करेंगे. सो बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू मस्ट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्चर, सिचुएशन, जो भी आपके सामने सिचुएशन है. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड द क्यूट ऑफ आइंस्टाइन, if I can't picture it, I can't understand it. Now let us discuss the next question. Example 4. 2-point sources of light are placed 24 centimeter apart in air. A converging lens of focal length 9 centimeter is so placed between the sources that their images coincide. Find location of the lens. It means there are 2-point sources, light source, एंड ऑफकोर्स अगर लाइट सोर्स हैं, लाइट के सोर्स हैं, रियल ऑब्जेक्ट होंगे, एंड उनके बीच में हमें एक कन्वर्जिंग लेंस रखना है. ऐसी जगह रखना है कि दोनों सोर्स की इमेज कॉन्साइड कर जाए. नाउ थिंक, अगर दोनों सोर्स की इमेजेस कॉन्साइड करनी है, दोनों इमेजेस एक ही साइड बनेंगी, मतलब श्योर है वो दोनों इमेज लेंस के एक ही तरफ होनी चाहिए. अगर लेंस के एक ही तरफ होंगी और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग साइड से हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वर्चुअल और दूसरे ऑब्जेक्ट की रियल. एक चीज और दूसरी, इनमें से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमको मालूम हमेशा लार्जर इन साइज होती है, रियल इमेज स्मॉलर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होगी. बट यहां हम पॉइंट सोर्स की बात करें तो इसमें इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है. सो हाउ विल एनालाइज, अब देखिए क्वालिटेटिवली हमने काफी एनालाइज कर लिया. सो लेट अस सी, इफ द इमेजेस coincide, both of them must lie on the same side of the lens. What does it mean? Therefore, one image must be real and the other virtual, as shown in the figure. See here, we have seen the two sources distinct, वो अलग अलग दिखाई दें. So one source I have taken by red color and one source by yellow color. And in between them somewhere we have to place the lens. Suppose I'm placing lens here. अब श्योर है ये सोर्स इसके ज्यादा पास में है, तो इसी की वर्चुअल इमेज बन सकती है. कि वर्चुअल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में होना पड़ता है, और रियल इमेज बनने के लिए अवे फ्रॉम द फोकस, बियॉन्ड फोकल पॉइंट. सो ये येलो जो सोर्स है उसकी रियल इमेज बनेगी इधर बननी चाहिए, और रेड सोर्स की इमेज इधर बननी चाहिए, और रेड सोर्स की इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी. येलो सोर्स की इमेज हम नहीं कह सकते बड़ी बनेगी छोटी बनेगी. सो हाउ द रे डायग्राम्स, इससे रे गई और ये रे कन्वर्ज होंगी, मींस दे विल बेंड स्लाइटली टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इनकी बेंडिंग इतनी नहीं होगी कि यहां जाए कट करें. इस रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां ये मीट करेंगी, तो यहां इधर से देखने वाले ऑब्जर्वर को ये महसूस होगा कि ये ऑब्जेक्ट की यहां पर, मतलब यहां उसको इमेज बनी दिखेगी, और एनलार्ज इमेज विच कंसिडर टू रेस दिस वे, सो यू विल गेट एन एनलार्ज इमेज. तो जो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास या कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस से बनती है, हमेशा एनलार्ज होती है. तो हमने इसको थोड़ा सा इससे बड़ा बना दिया. नाउ वी डिस्कस टू रेज फ्रॉम द येलो सोर्स ऑफ दिस रे, एंड ये रे यहां आके ऐसे कन्वर्ज होनी चाहिए कि इसी पॉइंट पे जाके मिले प्रिंसिपल एक्सिस को, और सेकंड रे दिस वे. सो इस तरह से इसकी इमेज यहां बनी, एंड यू कैन सी दिस इज द इमेज. अब यू कैन सी बोथ द इमेजेस आर कोइंसिडेंट. ये सिचुएशन समझने के बाद आप इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे. अब देखिए क्या होगा, अगर मैं रेड सोर्स की बात करूं तो उसके लिए साइन कन्वेंशन में टुवर्ड्स राइट विल बी पॉजिटिव. अगर येलो सोर्स, इस सोर्स की बात करूं तो उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी पॉजिटिव. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, साइन कन्वेंशन, बिकॉज लेंस इक्वेशन या मिरर इक्वेशन जब भी यूज करें
साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है यूज करना. नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू कैलकुलेट. सो लेट अस इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज हियर. हम ये दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर. एक सोर्स को S1 अज्यूम कर लें, दूसरे को S2 अज्यूम कर लें, एंड दैट इज 24. एंड लेंस की डिस्टेंस सपोज हमने S1 से अज्यूम कर लिया x, तो S2 से क्या हो जाएगा? 24 माइनस x. अब हम ये वैल्यूज दोनों बार, एक बार S1 के लिए रखेंगे लेंस इक्वेशन में, एक बार S2 के लिए. जब S1 के लिए रखेंगे तो u होगा माइनस x, एंड जब S2 रखेंगे तो u होगा माइनस ऑफ 24 माइनस x, बिकॉज फॉर दिस डायरेक्शन विल पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. नाउ फॉर कैलकुलेशन पर्पस बोथ फॉर दिस, इसके लिए v1 होगा S1 के लिए, और इसके लिए ये जो v1 इक्वल टू क्या होगा? v2 होगा. नाउ फॉर S1 v1 मस्ट बी नेगेटिव, फॉर S2 v2 मस्ट बी पॉजिटिव. लेट अस कम ऑन सम कैलकुलेशन पार्ट. तो जो हमने प्रॉब्लम्स के डाटा इनकॉर्पोरेट किए वो डायग्राम वापस यहां रीड्रॉ कर दिया. नाउ फॉर द व्हाट इज लेंस इक्वेशन, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बार बार रिपीट करनी होगी, तो v कैलकुलेट करना हो तो v इस लेंस इक्वेशन से पहले कैलकुलेट कर लें. सो व्हाट विल बी v? uf अपॉन u प्लस f. वेरी इजी टू सी फ्रॉम हियर. नाउ जस्ट से इमेज ऑफ S1. S1 की बात करें, सो व्हाट विल बी साइन कन्वेंशन? S1 की रेज टुवर्ड्स राइट जाएंगे, सो राइट साइड इज पॉजिटिव, सो u will be minus of x. Now substitute the values here. So v1 will be what? Minus x into f is 9 plus and minus x plus 9. So what you get here? v1 is equal to 9x upon x minus 9. Because ये minus x plus 9 होगा, कॉमन लेंगे तो क्या होगा? Minus of x minus 9 and minus minus cancel. So what you get here? 9x upon x minus 9. So ये v1 का हमें ये ऐसा दिख रहा है पॉजिटिव, बट it will be negative value because x will be smaller than 9. अब देखो यहीं से मालूम पड़ गया कि x की वैल्यू 9 से कम आनी चाहिए. मतलब वन ऑफ द सोर्स से जो डिस्टेंस है वो 9 से छोटी होगी एंड वन ऑफ द सोर्स डिस्टेंस 9 से बड़ी होगी. ये हम यही प्रेडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि हमको मालूम है फ्रॉम रे डायग्राम एंड ग्राफ्स कि वर्चुअल इमेज बनने के लिए सोर्स पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए. मतलब u फोकल लेंथ से कम होना चाहिए, एंड लेंस की फोकल लेंथ 9 दिया हुआ है. हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसी पॉसिबिलिटी केवल एक ही हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर. नाउ जस्ट सी, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इमेज फॉर S2. S2 के लिए क्या होगा? साइन कन्वेंशन टुवर्ड लेफ्ट विल बी पॉजिटिव, सो इसके लिए u होगा माइनस ऑफ 24 माइनस x. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अगेन इन दिस फॉर्मूला. सो v2 इज इक्वल टू minus of 24 minus x into 9 upon minus of 24 minus x plus 9, and it will be what? v2 equal to 9 of x minus 24 upon x minus 15. You can verify, very simple to see here. Now what is the condition? ये जो v1 और v2 है वैसे हमको दिख रहे हैं पॉजिटिव, बट देयर वैल्यूज आर हैविंग विद साइन. व्हाट? अगर हम एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन, बट ज्योमेट्रिकली दोनों इक्वल होने, दोनों के मॉड्यूलस इक्वल होने चाहिए. तो एज इट इज इक्वेट नहीं करेंगे, एक को इनवर्ट माइनस साइन लगा के हम इक्वेट करेंगे. सो व्हाट वी हैव इक्वेशन 1 and 2 अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री. व्हाट वी हैव? v1 is equal to minus v2, or you can say minus v1 is equal to v2. either of the you can take here. Please take care of this step. यहां से हो सकता है आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा, बट one of them is negative, means v1 is negative and v2 is positive according to the sign convention used. but जब हम इनको ये चीज यूज कर रहे हैं, that is purely geometrical constant, इसका v1 v2 का इक्वल होना मॉड्यूलस में ये ज्योमेट्री है. तो हमें एक मालूम है एक नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव को एक नेगेटिव साइन लगा दिया. सो v1 is equal to minus v2. So now substituting values from equation 1 and 2, what we get? 9x upon x minus 9 is equal to minus of 9x minus 24 upon x minus 15, and you can see you'll find a quadratic equation. It is apparent कि इसको यहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, यहां जाके x स्क्वायर आएगा. सो एंड यहाँ 9x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 9x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर की टर्म कैंसिल नहीं होगी. सर्टेनली यूल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 6 and 18. So x is 6 and x is 18. अभी आपसे कहा था कि x 9 से कम होना चाहिए, लेकिन एक दूसरा सोर्स भी तो है, उसके x 9 से बड़ा होना चाहिए. एंड यू कैन सी ये दोनों x का सम 24 है.
6 plus 18, 24. It means one of the answer is this one and one of the answer is this one. So for x equals 6 centimeter, the lens is 6 centimeter away from S1 and 18 centimeter away from S2. अगर मैं x को 18 लूं तो मैं क्या कहूंगा? For x को 18 centimeter, the lens is 18 centimeter away from S1 and 6 centimeter away from S2. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हमने लेंस को यहां अज्यूम किया होता. But general answer is what? Thus the lens is 6 centimeter away from one of the sources and 18 centimeter away from the other source. Now you can see here this problem was somewhat twisted. इसमें सिचुएशन को इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिचुएशन को इमेजिन करने के बाद ही आप ये स्टेप कर पाएंगे. विदाउट अदरवाइज यहां पे माइनस साइन आप भूल जाएंगे. सो व्हेनेवर ए क्वेश्चन, जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा एग्जाम में पूछा जाने लायक, उन सब में आप सिचुएशन को अगर इमेजिन कर लेंगे तो आप सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे. जनरली हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो टेक्स्ट बुक की इनिशियल प्रॉब्लम्स हमें दिमाग में बहुत रहती हैं, और जो हर टेक्स्ट बुक की जो इनिशियल प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स केवल आपको जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनसे फेमिलियर कराने के लिए होती है. तो उन प्रॉब्लम्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इस टाइप के प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप सीधे फॉर्मूला लिखें, वैल्यू रखें, आंसर आएंगे. बट इन एग्जामिनेशन लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली IIT एडवांस, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड. So it may involve any kind of twist. तो अगर आप क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन का नेचर पहले प्रेडिक्ट कर लेंगे तो आप क्या आंसर होगा वो कैलकुलेट करना आपको थोड़ा सा सही लगेगा. नाउ लेट अस कम द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल 4. A converging beam forms a sharp image on a screen. A lens is placed in the path of the beam 10 centimeter before the screen. And what the possibilities are? A. Which kind of object is the image for the lens? अब देखिए, अभी हमें लेंस के बारे में नहीं कहा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, बट क्या एक कन्वर्जिंग बीम आ रही है जो किसी एक स्क्रीन पर फोकस होती है. अब स्क्रीन से हमने 10 सेंटीमीटर बिफोर एक लेंस रख दिया. अब वो उस लेंस के लिए वेदर द लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो जो ये पॉइंट जहां पर रे कन्वर्ज हो रही थी वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा. एंड जस्ट सी नाउ बिफोर प्रेडिक्टिंग सी द रे डायग्राम. एक्चुअली दैट वाज गिवन. ये जो रेस थी, बीम कहां कन्वर्ज हो रही थी? एक स्क्रीन पर किसी पॉइंट पी पे कन्वर्ज हो रही है. अब हम पी से कुछ टाइम पहले हमने लेंस रख दिया. से हमने यहां लेंस रखा, तो लेंस रखा तो अब यहां से रेज सीधे नहीं जाएंगे. अगर डाइवर्जिंग है तो रेज थोड़ा बाहर की ओर मुड़ जाएंगी, कन्वर्जिंग है थोड़ा अंदर की ओर मुड़ जाएंगी. इसका मतलब ये हुआ ये जो रियल इमेज बन रही थी उस रियल इमेज को बनने से पहले हमने डिवाइस रख दिया. तो जो रियल इमेज डिवाइस को रखने से पहले बनती वो इस डिवाइस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी, क्योंकि वो बनी नहीं. एंड दैट वाज यू कैन सी ए वेरी इंटरेक्टिव डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे रेज जाके कन्वर्ज होती हैं. अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिकली वो डेफिनेशन भी मर्ज अपने को फील हो रही है. बट व्हाट एवर वी आर यूजिंग, कि अगर कोई रियल इमेज बनती है उसको बनने से पहले हमने कोई डिवाइस रख दिया रेज के रास्ते में, तो वो जो रियल इमेज बनती अब उस डिवाइस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी. तो ये हमारी मेंटल इमेजिनेशन या इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा क्लोज है virtual object definition, so I will use that definition. If the lens were not placed, a real image P would have been formed. But the lens, depending on its type, either diverges or converts the rays to make another image. And that is clear कि जो इमेज बनती वो नहीं बनी, लेकिन वो ही इमेज जो रियल थी वो अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रही, तो दैट विल सर्व एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट. दस द इमेज P सर्व्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस irrespective of the type of the lens. So we had done the first part. Let us see what is second part B. If the screen has to be shifted towards the lens to find image on it, what kind of lens is used? Second, if the screen has to be shifted away from the lens to find the image on it, what kind of lens is used?
अब देखिए क्या हुआ, लेंस के इंसर्शन से रेज पी पे कन्वर्ज नहीं हुई, या तो पी से थोड़ा पहले कन्वर्ज होंगी या पी के थोड़ा बाद कन्वर्ज होंगी, हो सकता है कन्वर्ज ही ना हो कहीं। तो अभी देखिए वापस एक स्क्रीन पर इमेज फाइंड करने के लिए हमें अगर स्क्रीन को क्या करना पड़ा, पहले टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट करना पड़ा, तो किस टाइप का लेंस यूज करेंगे, एंड अवे फ्रॉम द लेंस शिफ्ट करना पड़ा तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, दैट वी कैन सी वेरी इजीली फ्रॉम द रे डायग्राम। सो से पार्ट बी, दैट वाज सिचुएशन से हियर ये जो लेंस हमने यूज किया, अब इस लेंस ने रेज को अगर ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो यहां रियल इमेज बनी और हम स्क्रीन को यहां शिफ्ट करना पड़ा। क्लियरली इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस। सी जस्ट सी हाउ, अब देखिए वापस इस इमेज को यहां पे कन्वर्ट करने के लिए हमने शिफ्ट लेंस स्क्रीन को यहां शिफ्ट किया और दूसरी इमेज सपोज क्यू बनी, तो ये क्लियरली है ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ और ज्यादा टर्न कर देता है। सो हियर thus the lens bends the rays further towards the principal axis, thus it is a converging lens or convex lens, this kind. And obviously in the second case it will be a diverging lens. Let us see from the ray diagram. See here, ये लेंस रखने से क्या हुआ, this kind of situation, this अगर ये रेज थोड़ा आगे जाके कन्वर्ज होंगी, मीन्स अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं और यहां जहां पे रेज अब कन्वर्ज होती है पॉइंट क्यू पर, वहां तक स्क्रीन को ले आए तो इमेज यहां मिलेगी। तो अब देखिए यहां पे इस लेंस ने क्या किया, रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के अवे टर्न किया, सो इट इज डाइवर्जिंग लेंस। द लेंस बेंड्स द रेज आउटवर्ड्स, दैट इज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, thus it is a diverging lens, and you can see here. So very clearly by interacting with the ray diagram we can predict in which case it is diverging lens and in which case it is converging lens. Please take care of one thing, that is generally in examination such kind of simple questions, small questions are not asked. Such kind of decisions are generally part of a bigger problem. तो इनको सोचने में बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एंड जस्ट सी हियर रे डायग्राम्स एक्चुअली प्लेज ए वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्राफ या रे डायग्राम दोनों में से एक चूज कर लें। मैंने कहा पहली प्रेफरेंस रे डायग्राम को, बिकॉज इट इज मोर क्लोज टू आवर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, वो हमें सब्जेक्ट की बेटर इमेजिनेशन कराएगा। अगर रे डायग्राम से हमें डिफिकल्टी हो रही हो या कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, देन वी गो ऑन द ग्राफ। So here we are confident with the ray diagram, so no need to go on the graph. Now let us see the next part, D. If it is not possible to find an image on the screen by shifting the screen either away or towards the lens, what kind of lens is used? अगर स्क्रीन को हम लेंस की तरफ शिफ्ट करने से या लेंस से दूर शिफ्ट करने से किसी तरह से हमें स्क्रीन पर एक शार्प इमेज नहीं मिलती, तो कैसा लेंस यूज किया गया होगा? Again, this situation will be very obvious from the ray diagram. And इसमें अगर देखें तो there will be two possibilities. रे डायग्राम आपको दोनों possibilities बहुत clearly show करेगा. In the following two cases, this will happen. First, इसने रेज को इतना डाइवर्स कर दिया कि यहां एक वर्चुअल इमेज बने। तो आप स्क्रीन को यहां तक ले आओ तो भी इमेज नहीं बनेगी, दूर ले जाओ तो इमेज बनेगी नहीं। इट इज क्लियर। सो ये डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली हम एक ऐसा लेंस यूज करें जो रेज को पैरेलल कर दे, तो ना तो यहां कभी मिलेंगे ना यहां कभी मिलेंगे। अगेन इट इज डाइवर्जिंग लेंस। सो देयर आर टू सिचुएशंस। इन वन सिचुएशन एन वर्चुअल इमेज फॉर्म, इन अदर सिचुएशन नो प्रैक्टिकल इमेज इज फॉर्म। हियर यू कैन से either the image will be obtained at infinity plus or minus infinity, but it is a mathematical statement. Obtaining an image on infinity, it means we cannot obtain that image, because you have to shift the screen at infinity, and infinity is never ending. You never find infinity. So practically in such case, we have no image at all. So it is apparent that in both the above cases, the lens must be a diverging lens, and obviously concave lens. Now let's come on the next part, E. If the screen has to be shifted 8 centimeter further away from the lens to find an image on it, find the focal length and type of the lens. So the screen has to be shifted further away. तो यहां तक देख चुके हैं वो लेंस कैसा होगा, डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस इन यूजुअल सेंस। तो हो सकता है कि आपके चारों ऑप्शन में एक में ही कॉनकेव लेंस हो, तो आपको आगे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बट
सपोज वी टू फाइंड द न्यूमेरिकल आंसर. सो व्हाट वी डू, रे डायग्राम हम सोच चुके हैं. सो वेरी सिंपल, ये रे एक्चुअली यहाँ पी पे कन्वर्ज हुई होती 10 सेंटीमीटर अवे जो दिया हुआ था, बट यहाँ से स्क्रीन को 8 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस शिफ्ट करना पड़ा, तो यहाँ इमेज बनी. तो ये आपका एक कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस हुआ. तो अभी इसमें ऑब्वियस इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए द पॉइंट P विल बी एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट Q विल बी ए रियल इमेज. So sign convention towards right will be positive. So U will be 10 and V will be 18. Both are plus. और इनको लेंस इक्वेशन रखने पर हम easily focal length find कर लेंगे. So thus the lens must be a diverging one and P a virtual object and Q a real image. So sign convention towards right positive. So U is 10 and V is plus 18. And now we substitute these values in the lens equation. So 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, and substituting value we can easily calculate F. So what? F is equal to UV upon U minus V. So 10 into 18 upon 10 minus 18. So it is what? Minus 22.5. Minus means again it is confirmation that this lens is diverging. So focal length is minus 22.5 centimeter. So we have solved this problem. Let's come on again, very important problem that has practical importance also. Example 5, displacement method. So actually I have to discuss this displacement method, but I'm converting the displacement method in several small problems and try to understand all the problems separately, because these are the steps to understand clearly the displacement method. Actually, displacement method is used to measure focal length. Again, something may be asked, can it be used to measure the focal length of both type lens? So, all such kind of questions, whatever can be made. If you understand the situation, you can find the answer of everything. Again, here we deduce some results. If you remember the results, you can use further those results directly. Otherwise, the process is quite simple. Whenever there will be some situation involving displacement method, you can derive the result and find the answer. So what the situation is, a lens has to be placed between a real object and a screen to cast an image of the object on the screen. अब देखिए, आप भूल जाइए अभी कि हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात कर रहे हैं. अभी तो हम सोचे हमारे पास एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? एक लेंस एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज एक स्क्रीन पे कास्ट करने के लिए यूज किया जाता है. मतलब ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड? आप रे डायग्राम भी सोच सकते हैं, ग्राफ भी. आपके माइंड में दोनों ग्राफ आएंगे. आप अगर देखें तो ये यू रियल मीन्स यू नेगेटिव और रियल ऑब्जेक्ट में रियल इमेज मीन्स वी पॉजिटिव. इट मीन्स यू नेगेटिव वी पॉजिटिव. द ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट मस्ट बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल कन्वर्जिंग लेंस के ग्राफ में एक ब्रांच आती है. सो वी कैन यूज ओनली कन्वर्जिंग लेंस. तो ग्राफ से क्लियर हो गया. अदरवाइज वी कैन प्रेडिक्ट इट फ्रॉम द रे डायग्राम ऑल्सो, बट लेट अस सी. सो टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ लेंस, इधर रे डायग्राम और यूवी ग्राफ में भी यूज्ड. फर्स्ट वी सेंड रे डायग्राम. जैसे मैंने कहा, हम पहले रे डायग्राम को प्रेफरेंस देंगे, बट सिचुएशन को समझें. ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे गई जो इस पोल से निकली तो अनडिवाइडेड पास हुई, और दूसरी रे हम ले लें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई जो यहीं आके मिलनी चाहिए. ये इमेज आई पर ये दिस एंड दैट वे. क्लियरली दिस शोज दैट लेंस इज कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस. तो ऐसा पॉसिबल, अभी ऐसा लग रहा है केवल कॉन्वेक्स लेंस के लिए. क्या डाइवर्जिंग लेंस के लिए ऐसा पॉसिबल है? वो रे डायग्राम हो सकता है सोचना मुश्किल हो, बट अगेन इफ यू सी द ग्राफ आप बिल्कुल क्लियरली कर पाएंगे, yes, it is not possible for a diverging lens. So F2 here this, and again we are coming a converging that is a convex lens must be used. Now we can see what is the use of UV graph. Let us see both the type of graph for converging lens and that is for diverging lens. Now you can clearly see that U negative V positive exists only on the graph of converging lens, so diverging lens cannot be used. Now in situation you can clearly see ऐसा होगा या नहीं होगा. अगर ऐसा होगा, कोई सिचुएशन एग्जिस्ट होनी है, तो रे डायग्राम सोच सकते हैं कि जो एग्जिस्ट होता है उसका रे डायग्राम सोच सकते हैं. बट अगर कोई चीज होनी नहीं है तो आप उसका रे डायग्राम नहीं सोच पाएंगे.
और रे डायग्राम नहीं सोच पाए तो आपके माइंड में हमेशा डाउट रहेगा, हो सकता है हम वो रे डायग्राम सोच ही ना पा रहे हो जो इसके लिए हो। तो एक्चुअली नेगेटिव पॉसिबिलिटी इट मीन्स दैट इम्पॉसिबल सिचुएशन को प्रेडिक्ट करना कि सिचुएशन इम्पॉसिबल होगी, उसके लिए रे डायग्राम इज नॉट ए कंफर्म आंसर। फॉर दैट only the graph will give you a confirm answer. So here we have a clear cut demarcation. तो हम किसी पॉसिबिलिटी को सोचने के लिए पहली प्रेफरेंस रे डायग्राम पे देंगे अगर वो एग्जिस्ट करती है तो, बट उसका नॉन एग्जिस्टेंस प्रेडिक्ट करने के लिए हम रे डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे ना। अगर रे डायग्राम नहीं बना पाए तो हो सकता है हमारे माइंड में ये बात चलेगी, हो सकता है जो इसका रे डायग्राम हो वो हम नहीं सोच पा रहे हो। तो वहां बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी, ग्राफ यूज करना। तो इम्पॉसिबल कंडीशन, किसी कंडीशन की इम्पॉसिबिलिटी, किसी सिचुएशन की इम्पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट करने की ये नहीं होगा। फॉर दैट confirm test is the graph. Now let us come on the B part, because I have said that we are discussing displacement method. So displacement method, the entire method जो उसका पूरा प्रिंसिपल है उसको मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके कर रहा हूँ। तो पहला आंसर ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाई जाती है, तो इसमें केवल कन्वर्जिंग लेंस यूज हो सकता है। तो अगर इससे फोकल लेंथ फाइंड करनी हो तो हम केवल कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस की नहीं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फाइंड कर सकते हैं एंड कॉन्केव लेंस की नहीं। बट एक बात ध्यान रखें, देयर में बी ए ट्विस्ट। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन इन सम लिक्विड refractive index of which is more than that of the lens, उस केस में भी आंसर मेरा वही रहेगा, we can see the converging lens. But now a concave lens will become a converging lens. So giving the answer concave or convex is not a very clearly correct. Try to use the term diverging or converging. So here there may be a twist in this problem. क्योंकि डिस्प्लेस मेथड हमेशा मतलब आप पढ़ेंगे तो बुक्स में हर जगह से एक याद हो जाएगा, दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंस। बट एग्जाम में ट्विस्ट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम भी दे दिया और ये कहते हैं इट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट इज 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल लेंस इज 1.5। किस टाइप के लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे अगेन टाइप वही है, कन्वर्जिंग, बट हियर कॉन्केव लेंस विल बिकम कन्वर्जिंग। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज। सो दैट इज कॉन्वेक्स इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग, इट मे बी डाइवर्जिंग। सो बेटर टू यूज विच टर्मिनोलॉजी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। बट यूजुअली जो हमारा, अगर हम कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं कि हम मान के चलते हैं आउटसाइड मीडियम एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। So here V graph, U negative, V positive. So let us see, यहाँ पे एक ही पॉइंट हो सकता है, इसमें पॉइंट नहीं हो सकता. So clearly only a converging lens can be used. This point is in the second quadrant, therefore a converging lens can only be used. Can only का प्रेडिक्शन हम ग्राफ से कर सकते थे, रे डायग्राम से तो हम कह सकते हैं हाँ कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा, बट डाइवर्जिंग नहीं होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि रे डायग्राम इम्पॉसिबल, आप बना नहीं पाने इसका मतलब नहीं इम्पॉसिबल, नहीं कह सकते. So let us come on the next part. Part B. What should be the least distance between the object and the screen such that a real image can be casted on the screen for two distinct positions of a converging lens? Two distinct position. ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में दो अलग अलग जगह रख के हम लेंस को रख के इमेज बना सके उसी स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स रखते हुए. तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सो लेट अस फर्स्ट थिंग क्वालिटेटिवली रे डायग्राम. तो ये आप देखिए डी डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन. द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू सेकंड फोकस एंड हियर, एंड दैट इज सेकंड रे. दिस हियर वी गेट एन इमेज क्यू ऑन द स्क्रीन. नाउ जस्ट सी, ये x अज्यूम कर लिया, दैट विल बी व्हाट, d माइनस एक्स. सिमिलरली व्हाट सिचुएशन वी कैन से अदर क्या होगा, हम लेंस को थोड़ा इधर ले आते हैं, बट हम कैलकुलेट कर लें इससे. अब x की हो सकता है हम कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो लग रहा होगा यहाँ 1/d माइनस एक्स 1/x लेंस इक्वेशन में आएगा, तो आपको क्लियरली आंसर फील हो रहा है. यू विल फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन फाइंड टू रूट्स ऑफ x. वो दोनों रूट्स x की दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक थोड़ा छोटा होगा एक थोड़ा बड़ा होगा. सो साइन कन्वेंशन फ्रॉम हियर, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से u इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड v इज इक्वल टू d माइनस एक्स.
and substituting these values in the lens equation. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. So 1 upon d minus x minus 1 upon minus x is equal to 1 upon f. And clearly this will make a quadratic equation, and solving this you will get this. And please verify this calculation. So x will be d plus minus d square minus 4fd upon 2. So that is discriminant. Now what is asked? For what least distance this situation can be possible? It means we can find a real x. That is mathematical thing. So for all real values of x, the given conditions will be fulfilled. So x हमेशा real हो. It means that discriminant must be 0 or greater than 0. So what we have, d square minus 4fd should be 0 or equal to 0. And clearly d cannot be 0. So what we have, d minus 4f will be greater than 0 or equal to 0. So d must be greater than or equal to 4f. What it shows? The least distance is 4f, 4 times of the focal length of the lens. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड की सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब रियल ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस लेंस जो कन्वर्जिंग है उसकी फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज्यादा हो. तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीख चुके हैं. पहला, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर कन्वर्जिंग लेंस. सेकेंड, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन मस्ट बी ग्रेटर देन 4f और इट कैन बी 4f. बट अगर ये 4f होगा तो x की केवल एक ही रूट आएगा. इट मीन्स देयर विल नॉट बी 2 डिस्टिंक्ट पोजीशंस. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए हम लेंस की 2 पोजीशन यूज करेंगे. लेंस को डिस्प्लेस करना होगा तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f इज द आंसर. Thus this distance between the object and the screen must be 4f. लीस्ट मतलब 4f से थोड़ा सा ज्यादा. इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो भी काम चल जाएगा. So that is a very important result here. So we can use this one. So now let us coming on the next part, C. What can you conclude by the 2 real roots obtained in the previous part? What the roots are? X is equal to d plus minus d square minus 4fd upon 2. What does it mean by? तो इसका इंटरप्रिटेशन फाइंड करने के लिए एक बार इसको हम रे डायग्राम में शो करने की कोशिश करें. तो हम एक काम करते हैं, पहले x छोटा वाला ले लें, मतलब माइनस साइन वाला, फिर x बड़ा वाला ले लेंगे. कंसीडर वन ऑफ द रूट्स विद माइनस साइन. u इज इक्वल टू x इज इक्वल टू d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2. तो अब यहां से हम v निकालें, v क्या होगा, d माइनस एक्स. सो क्लियरली यू फाइंड v विल बी व्हाट, दिस प्लस. इसका मतलब बहुत क्लियर है, जो x के 2 रूट हुए उनमें से एक रूट v होगा, दूसरा d होगा. एक u होगा, दूसरा v होगा. ऑब्वियसली सिमिलरली अगर ये सही है तो प्लस साइन लेने के बाद भी वही बताती. u डैश ले लिया तो ये d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2. एंड व्हाट विल v डैश, d माइनस एक्स. सो अगेन दिस वन. तो वही रिजल्ट मिला अपने को. मैथमेटिकल वैल्यू अलग है बट क्वालिटेटिव रिजल्ट इज सेम. इन दोनों रूट्स में से एक v है और एक u है. इट मीन्स 2 हमें अपोजिट सिचुएशन मिलेंगी. एंड नाउ लेट अस थिंक हाउ इट इज पॉसिबल विद रे डायग्राम. सपोज मैंने ये v लिया, ये u लिया, ये रे यहां से गई, यहां टर्न हुई और ये पोल जाती हुई रे यहां जाके व्हाट इट इज मेकिंग द रियल इमेज. सो दिस इज नाउ सेकंड सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन में मतलब क्या है कि ये u डैश लिया हमने, ये v डैश लिया. और अब देखिए u डैश सर्टेनली बड़ा होगा और यहां से क्लियर है कि जो सेकंड के लिए इसके लिए v था वही u डैश है. सो रे डायग्राम इज क्लियर. द रे पासिंग थ्रू द पोल विल गो अनडिविटेड. द रे पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड हियर विल मेक ए स्मॉलर रियल इमेज इन्वर्टेड. एंड व्हाट इज ऑपरेंट? इसका जो v डैश है वो u है, इसका जो u डैश है वो v है. ऐसे इसका जो u था वो ये v डैश है और इसका जो ये दैट इज u डैश था वो v है. इट मीन्स ये सिचुएशन जस्ट 180 फ्लिप्ड है अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस. अगर रे डायग्राम को हटा दें तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज हटा दें तो सिचुएशन एक बार जितना डिस्टेंस हमने यहां से रखा उतना डिस्टेंस स्क्रीन से यहां रखा. दैट इज सिचुएशन. नाउ वी कैन कम ऑन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. दैट इज व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोजीशंस ऑफ द लेंस. इट मीन्स एक कॉन्फ़िगरेशन से एक ऑब्जेक्ट एक इमेज मिल गई,
अब लेंस को हम कितना और डिस्प्लेस करें कि दूसरी इमेज मिल जाए, एंड वही डिस्प्लेसमेंट मेथड में लेंस का डिस्प्लेसमेंट है, एंड यू कैन सी दैट इज वेरी इजीली व्हाट, सी डी स्क्वायर माइनस 4fd स्क्वायर, जो इस रूट का डिस्क्रिमिनेंट था वही है, एंड इट इज वेरी सिंपल टू सी हियर। ये बेसिकली किसी भी केस में u और v का डिफरेंस होगा, किसी भी केस में u और v का डिफरेंस ले यही आएगा डिस्क्रिमिनेंट। So that is not very difficult. So you can simply say what is the displacement of the lens, that is d square minus 4fd। यहां से भी क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें लेंस को डिस्प्लेस करना है तो डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए लेंस का, तो डिस्प्लेसमेंट रियल होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है डी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4fd, मींस d must be greater than 4f। Now come on the next part. Find expression for the focal length of the lens, denote the displacement of the lens from one configuration to the other by x। अब हमने जो फॉर्मूला डेवलप किया तो x को हमने लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस लिया था, बट यहां पर x को ले रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट था क्या, d स्क्वायर माइनस 4fd, इसको हमने x से डिनोट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस। सो व्हाट सॉल्यूशन वी कैन मेक हियर, से पहला रे डायग्राम, दूसरा पोजीशन, and this is x, and x is what, d square minus 4fd square root। From the above two situations what we can say, v plus u is equal to d तो हमेशा होगा v plus u is equal to d, and v minus u is equal to x। अगर आपने दूसरी स्टार्ट किया था यहाँ u minus v is equal to x आता, एंड रिजल्ट फिर भी वही आएंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट व्हाट v and u from previous two equations, u is equal to d minus x by 2 and v is equal to d plus x by 2। So now substituting these values in the lens equation and with due respect to sign convention, what is sign convention? For this right what is positive, so v का जो ये वैल्यू होगा ये पॉजिटिव रहेगा और u का ये वैल्यू नेगेटिव में रहेगा। So 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. So 1 upon d plus x by 2 minus 1 upon minus of d minus x by 2 is equal to 1 upon f. And again by solving this, what you get here, f is equal to d square minus x square upon 4d. So that is expression for the, can see displacement method से focal length find करने का। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, जितना लेंस को डिस्प्लेस किया वो और इमेज और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यूज करते हैं, दैट डिस्टेंस इज d, और लेंस को डिस्प्लेसमेंट किया x से तो दैट विल बी फोकल लेंथ। सो अगेन यू कैन सी व्हाट इज x, d स्क्वायर माइनस 4fd, ये रिकॉल करने के लिए यहां से भी निकाल सकते हैं। सो व्हाट वी हैव, इफ मैग्निफिकेशन इन वन of the positions of the lens is m and separation between the object and its real image is d, find a suitable expression for the focal length। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम d और x मेजर करके भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, या मैग्निफिकेशन और d से भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू हियर, से कंसीडर वन ऑफ द सिचुएशंस, दोनों में से एक सिचुएशन कंसीडर कर लें ऑफ द लेंस। हमने ये ले लिया दिस वन u and v, so u is equal to d minus d square minus 4fd upon 2 and v is equal to d plus square root d square minus 4fd upon 2। From here what is magnification, m is equal to v by u, so this upon that half will cancel एंड क्लियरली सो अगर हम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लिया तो मैग्निफिकेशन ठीक इसका रेसिप्रोकल आता, तो दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशंस वी गेट f is equal to md upon m plus 1 whole square। हाउ वी कैन गेट md upon m, what is previous equation, this one, यहां से सॉल्व करके आप f फाइंड कर सकते हैं, what is md upon m plus 1 whole square। so by measuring magnification in one of the case you can find focal length। again just see, ये इक्वेशन आप प्रेडिक्ट करेगा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में उल्टी होती हैं। एक केस में ये u होगा, ये v है, ये u है, दूसरे केस में ये आपका v होगा, ये u होगा।
तो दूसरे केस का मैग्निफिकेशन में m डैश लिया होता तो ये 1/m होता. Magnification in the two cases are related by m dash is equal to 1. तो अगर मैंने दूसरा मैग्निफिकेशन फाइंड किया तो भी यही आता. कैन से therefore we get the same expression for the focal length in for both the cases. What f is equal to md upon m plus 1 square or m dash d upon m dash 1 plus 1 square. You can verify it. So that is whole about the displacement method. All possibilities we have covered. Now let us use it in some of the problem. Example 6. A thin plano-convex lens of focal length f is split into two halves from its optical axis, and one of the halves is shifted along the optical axis as shown in the figure. In this situation, the separation between the object and the image plane is 1.8 meter. Magnification of the image by one of the halves is 2. Find focal length of the lens and separation between the two halves. अब ये कहा गया है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज बाय वन ऑफ द हाफ इज 2, मतलब दोनों से इमेज बन रही है. तो अगर एक से मैग्निफिकेशन 2 होगा तो दूसरे से 1/2 होगा. m2 तो m dash 1/2 and situation is given like that. So this 1.8 meter is clearly d. So what we have to calculate? हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ f की वैल्यू और ये दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस मींस x, दैट इज व्हाट d square minus 4fd square root. So clearly here given that what is given, d is equal to 1.8 and m is equal to 2. So what is focal length? md upon m plus 1 whole square. Now substitute the values. 2 into 1.8 upon 2 plus 1 whole square, and that is 0.4 meter is the focal length. Now separation between the two positions of the lens, that was x is equal to d square minus 4fd square root. So x is equal to d square minus 4fd the whole square root, and by substituting values what we get here, x equal to 1.8 square minus 4 into 0.4 into 1.8, and that will be 0.6 meter, means 60 centimeter. So that we have done this questions. Now we are coming on home assignment, and today what I say concluding this one, actually in the first lecture of thin lens we have seen qualitatively the use of ray diagram and graph. तो हम वहाँ पे अपने आप को इस तरह से एक्सपर्ट किया कि हर सिचुएशन को क्वालिटेटिवली प्रेडिक्ट कर सकें, और आज उसका जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये है कि अगर कोई पॉसिबल सिचुएशन है तो उसको तो आप रे डायग्राम और ग्राफ दोनों से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको रे डायग्राम से रे डायग्राम होगा ही नहीं, थोड़ा मुश्किल है, बट ग्राफ से उसको हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है. सो इम्पॉसिबल सिचुएशन का प्रेडिक्शन ग्राफ से ही ज़्यादा कंफर्म होगा. सो व्हाट इज असाइनमेंट होम टुडे हियर? Revise all the ideas covered today in this lecture and practice all the example problem. And from SCV, you have to do some problems here. Exercise from SCV, chapter 18, question number 51 to 59. So we very quickly meet for the next lecture. So thank you for patient listening. We'll meet on the next lecture. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.